Meanwhile, the Congress party has called out Aam Aadmi Party's bluff, saying that this is nothing but a bid to collect data of the people ahead of the elections. In fact, the Congress has also branded Kejriwal as Farziwal. Name calling and open war of words between Aam Aadmi Party and the Congress in the national capital. Let's now listen in to the Congress reaction coming in. केजरीवाल के बारे में आप सब लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। मेरा मानना यह है कि आज दिल्ली की दुर्दशा और कांग्रेस कमजोर केवल इस वजह से हुई है कि हमने 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। Well, Gopi is joining me live on this broadcast. Gopi, there is a press conference versus press conference, claim versus claim between the Aam Aadmi Party, Congress, and now the BJP as well has attacked Kejriwal, saying that these schemes are nothing but to just collect data and send Aam Aadmi Party's messages to the people ahead of the elections. Tell us about the scheme war that's currently raging in the national capital. Well, in fact, Deepak, we are just a few weeks away from the Delhi Assembly polls. And as you've seen that since morning today, the questions have been raised on two schemes, which is Mahila Samman Yojana as well as Sanjeevani Yojana. One is for women, other is for the elderly aged about 60. Now, the political slugfest, as I said, has just begun. In fact, the BJP leaders have given it back to the Aam Aadmi Party government, where they have said that where is the proof that there was cabinet nod given to these two schemes, while also was there any sort of discussions which had happened in the assembly, was the proper budget allocation on the two schemes? These are the questions which are being raised by the BJP, while we just saw how Ajay Maken has also called the Delhi Chief Minister, former Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, as Farziwal. So this coming from Congress is now pacing, and we will have to wait and watch what pans out in the day, as a notice was issued today in the newspapers, which the Delhi Chief Minister Atishi has claimed that serious action in fact would be taken by the ones who are involved in publishing this notice. And in fact she has said that BJP has influenced few of the administrators of the Aam Aadmi Party. So serious steps would be taken by the Aam Aadmi Party government. We'll have to wait and watch what pans in the day. Back to you, Deepak. Right, Gopi, stay on with me because we have a couple of reactions of the BJP leaders who you spoke to this morning. Let's listen that. वैसे मुझे तो 2 दिन पहले ही इसका अंदाजा हो गया था, लेकिन
ये दिल्ली के इतिहास में ये बड़ा यूनिक सिचुएशन है कि जो मुख्यमंत्री है वो कुछ बोल नहीं रही है और जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो फर्जी कागज बांट रहा है और उसी की सरकार का डिपार्टमेंट कह रहा है कि जनता सावधान रहे, ये कोई ऐसी योजना ना तो है, ना तो प्रस्ताव में है, ना तो किसी भी मीटिंग में इसको रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए है। ये जनता के साथ फ्रॉड हो सकता है और ये लिखने वाला दिल्ली सरकार का वो डिपार्टमेंट है जिसका नाम लेकर के अरविंद केजरीवाल कुछ कागज बंटवा रहे। अरविंद केजरीवाल का मतलब ही झूठ है। 2 दिन से दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं कि हर महिला को 2100 रुपये दिया जाएगा और आज अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है वो ये नोटिस निकाल रही है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है, ये योजना नहीं फर्जीवाड़ा है और इस योजना पे कोई भी डाटा अगर कोई आपसे ले रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है। 2 दिन से दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं कि हर महिला को 2100 रुपये दिया जाएगा और आज अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है वो ये नोटिस निकाल रही है कि इस तरह की कोई योजना नहीं है, ये योजना नहीं फर्जीवाड़ा है और इस योजना पे कोई भी डाटा अगर कोई आपसे ले रहा है तो वो आपको धोखा दे रहा है। तो सीधा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधा अरविंद केजरीवाल को कह रही हैं कि भाई ये धोखेधड़ी मत कीजिए, आप ये डाटा इकट्ठा मत कीजिए क्योंकि 2100 रुपये और संजीवनी नाम की कोई योजना दिल्ली की सरकार के प्रावधान में है ही नहीं। तो जब सरकार खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि 2100 रुपये हमने देने ही नहीं है, हमने संजीवनी योजना नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो फिर अरविंद केजरीवाल कौन सा ढोल लेके पीट रहे हैं? वो सिर्फ झूठ का ढोल है जो दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा गया है, अब जाते जाते भी ये ठगना चाहते हैं।